السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تبارك وتعالى اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته حراما بينكم فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ رجب المرجب چل رہا ہے. بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اس مہینے میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں برکت کی دعا مانگی ہے. سال کے باقی مہینوں میں سے کسی مہینے میں اس طرح زندگی میں برکت کی دعا ثابت نہیں. یہ تو ہے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین ہونے کی حالت میں وفات دے اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرما.
کا बड़ा मुबारक महीना है। अगली जुमा में वाक़या मेराज के 3 तोहफों में से एक तोहफा नमाज पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी। आज की इस मजलिस में मेराज का दूसरा तोहफा सूरह बकरा के अखीर की आयतें, सूरह बकरा की अखीर की आयतें और सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत फजीलत के एतबार से इन दोनों पर कदर तफसीली गुफ्तगू करनी है। सूरह बकरा के अखीर की आयत आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये सूरह बकरा की अखीर की 2 आयतें हैं। पूरी कुरान में सबसे लंबी सूरत तिलावत के बाब में सूरह बकरा है जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। 300 के आसपास, 250 के करीब करीब इस सूरह शरीफा के अंदर आयतें हैं। इसी सूरत में सूरह बकरा की अखीर की इन 2 आयतों को अल्लाह ने आका को मेराज करवाकर आसमानों पर अता फरमाई, जबकि बाकी कुरान की 6664 आयतें जमीन पर आई और ये 2 आयतें अल्लाह ने मेराज करवाकर आसमानों पर दी। 6665 आयतें आप गिन ले मजमून के एतबार से और 65 में से 2 निकाल दे तो 6663 आयतें वो जमीन पर उतरी और ये 2 आयतें बतौर तोहफे के अल्लाह ताला ने मेराज में अता फरमाई। इन 2 आयतों की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने अर्श के खजानों में से इन 2 आयतों को निकाल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। जिसको ये 2 आयतें मिली उसको जन्नत का खजाना नसीब हो गया। अल्लाह के अर्श के पास से जन्नत के खजाने से अल्लाह ने ये 2 आयतें उतारी और इन 2 आयतों को आपकी जात को अता फरमाया। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत इन दोनों आयतों के फदाइल के सिलसिले में ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात के पैदा करने से 2000 बरस पहले इन आयतों को अपने दस्ते मुबारक से लिखा था और अल्लाह ताला ने इसको अपने अर्श के खजाने में शामिल कर दिया। दूसरी हदीस में ने यह पेश की, कायनात की मखलूकात के बनाने से 2000 बरस पहले इन दोनों आयतों को अल्लाह ने अपने हाथ से लिखा और अपने अर्श के खजाने के अंदर इसको महफूज कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 आयतें अता फरमाई। तीसरी बात, जो आदमी इशा की नमाज के बाद ये 2 आयतें पढ़ करके सो जाए और तहज्जुद में उठ न सके, उसके नामाए अमल में तहज्जुद लिख दी जाएगी। खाली ये 2 आयतें रात के वक्त सोते वक्त पढ़ ले तो उसके नामाए अमल में तहज्जुद का सवाब लिखा जाएगा। इन 2 आयतों के पढ़ने की वजह से हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ए इंसानों, तुम भी सीख लो, अपनी औरतों को भी सिखा दो और अपने बच्चों को भी सिखा दो, इसलिए कि पूरी कुरान में ये 2 आयतें अल्लाह के अर्श के खजाने से बतौर खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। इन दोनों आयतों में है क्या?
इतनी बड़ी शान वाली ये दो आयतें हैं। सादे अंदाज में यूं समझो, सूरह बकरा में तौहीद, रिसालत, आखिरत, अकाइद, इबादत, मुआमलात, माशरत, अखलाकियात के कवाइद और उसूल और ज़वाबित बयान किए गए हैं। सूरह बकरा ज़ाब्तों की किताब है, नियम की किताब है। यानी ये सूरत है जिसमें अकाइद के बाबत, इबादत के बाबत, मामलात और अखलाकियत के बाबत अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल फरमाए हैं। और इसके खत्म पर बंदा मोमिन की अल्लाह ताला ने मदा सराई फरमाई है, ईमान वालों की तारीफ बयान की है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। इसमें ईमान वालों की तारीफ बयान की गई और आखिर में एक शुबे का जवाब दिया गया जो सहाबाए किराम के दिलों में था, और उसका जवाब दूसरी आयत में दिया गया। इन दो आयतों में दो किस्म के मज़ामीन है। तो सूरह बकरा की आखिर की दो आयतें आपको मेराज की रात का तोहफा है। सूरह बकरा में 252-55 नंबर की एक आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं, जो मैंने पढ़कर सुनाई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना ar-रुश्द मिनल ग़य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। और तीसरी आयत करीमा फरमाई, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात। आयतुल कुर्सी में 10 जुमले हैं, 50 कलीमे हैं और हर कलीमे का सवाब 50 आयतों के बराबर है। आयतुल कुर्सी में 10 जुमले हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम एक जुमला है। ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम 2 जुमले हो गए। जुमला वाक्य को कहते हैं। एक वाक्य एक हर्फ होता है, एक कलीमा होता है। हर्फ जैसे अलिफ एक हर्फ है, ABCD का एक हर्फ है। एक हर्फ, एक कलीमा जिसको गुजराती में शब्द कहते हैं, और एक जुमला जिसको गुजराती में वाक्य कहते हैं। पूरी आयतुल कुर्सी में 10 जुमले हैं, 10 वाक्य हैं, 50 कलीमे हैं, यानी 50 शब्द हैं, और हर कलीमे का फायदा 50 कलीमों के बराबर है। आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी फजीलत पूरी कुरान में, पूरी कुरान की 6665-66 आयतों में, पूरी कुरान की आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी है। और पूरी कुरान में अजमत के बाब में सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। और तिलावत की तिवालत के बाब में सूरह बकरा में आयत देन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। उधार लेती देती करने के कायदे और ज़ाब्ते कुरान की एक आयत में है। उधार लेती देती करनी हो, व्यवहार करना हो, पूरी कुरान में पढ़ने में लंबा और लिखने में सबसे लंबी आयत आयत देन है। और पूरी कुरान में अजमत के बाब में, अल्लाह के यहां तकद्दुस के बाब में सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल मुंजिर उबई इब्न काब से पूछा, ए उबई, पूरी कुरान में अजमत के एतबार से सबसे बड़ी आयत कौन सी? अबुल मुंजिर उबई इब्न काब ने फरमाया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम। फिर आका ने सवाल दोहराया,
अबुल मुंजिर, पूरी कुरान में अजमत के एतबार से सबसे बड़ी आयत कौन सी? वही जवाब अल्लाह व रसूलुहु आलम, तीसरी मर्तबा यही जवाब दिया। फिर उबय इब्न काब ने फरमाया आयतुल कुर्सी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबय इब्न काब, अल्लाह तेरे इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, पूरे कुरान में सबसे बड़ी आयत अजमत के बाद में आयतुल कुर्सी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई। अबू ज़र गिफारी से फरमाया इसमें आज़म है और वो है अल हय्युल क़य्यूम। इस सूरत के फजाइल में 3 रिवायतें हैं। मुख्तसरन पहली रिवायत ये, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी का शर्फ अबू अय्यूब अंसारी को हासिल हुआ था और आका इनके घर में 1 महीना मेहमान रहे थे। इतने ऊंचे दर्जे के सहाबी, बहुत बड़ी उम्र पाई अबू अय्यूब अंसारी ने। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं मेरे घर में एक बोरी के अंदर खजूर रखे हुए थे, रोजाना रात को इसमें से चोरी हो जाती थी। एक दिन मैंने पहरा लगाया कि देखे क्या होता है, तो कोई आया जिन्नात और उसमें से चोरी कर जाता है। मैंने उसको पकड़ा, पकड़ करके कहा कि मैं तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहा नहीं, बहुत भूखा हूं, मेरे बच्चे भी बहुत कंगाल है, घर में बहुत भूख मरा है, मुझे छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, कल नहीं आऊंगा। दूसरी रात फिर आया, इसी तरह छोड़ दिया। तीसरी रात फिर आया। अबू अय्यूब ने कहा उस वक्त तक मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तुझे न पहुंचा दूं। उसने कहा कि देखो ऐसा मत करो, आइंदा से मैं कभी भी नहीं आऊंगा, मैं आपको यह आयत पढ़ सुनाता हूं, वह आयत आप याद कर लें, हमारी पूरी जिन्स से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। सुबह होने में अबू अय्यूब अंसारी जब नमाज फजर के लिए मस्जिद में आया तो आका ने फरमाया तेरे रात के मेहमान का क्या किस्सा हुआ? पहले ही पूछने से पहले अबू अय्यूब बताए, इससे पहले आका ने फरमा दिया। फिर फरमाया कि वो शैतान था, बड़ा झूठा था, लेकिन बात सच्ची बता गया। इसी तरह का वाकया एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बुखारी शरीफ में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमजान के आखिर अशरे में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे और सदकतुल फित्र के खजूर आए थे, तो वो संभाल करके रखे थे सदकतुल फित्र के खजूर, और अबू हुरैरा को इस पर चौकीदार रखा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि रात के वक्त शैतान आया और अंदर से चोरी कर रहा है, जिन्नात आया, इबलीस की औलाद, और अंदर से चोरी कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने इसको पकड़ लिया, बहुत उज़्र माज़रत की, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं बहुत बच्चे वाला हूं, बहुत भूखा हूं, घर में फाका है, सदके ही की तो खजूर है, इंसानों में तकसीम करनी है, जिन्नातों के अंदर भी तकसीम हो जावे तो क्या हर्ज है। अबू हुरैरा रहम दिल से छोड़ दिया। दूसरी रात को फिर वापस आकर के चोरी करने लगा सदकतुल फित्र के खजूर को। अबू हुरैरा से फिर माफी मांगकर चला गया। आका ने पहली ही रात में पूछा, फिर दूसरी रात में भी पूछा, फिर तीसरी रात के अंदर अबू हुरैरा ने फरमाया कि जब तक आका की खिदमत में नहीं ले जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। और उस वक्त अभी अबू हुरैरा को यह आयतुल कुर्सी बता गया और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आका ने फरमाया ये जिन्नात था, शैतान था, लेकिन उसने बात सच्ची कर दिखाई। इस तरह का एक और वाकया भी है। एक सहाबी ने पकड़ा और उसने कहा मैं तमाम जिन्नों में सबसे ताकतवर हूं, और जब उनका हाथ टटोला तो कुत्ते के अगले पैर की तरह उसका हाथ था, यानी बालों वाला, और उसने कहा कि पूरी जिन्नातों में सबसे बड़ी ताकत का मैं मालिक हूं, लेकिन हम आपको ये कलीमे बता देते हैं, आप इसको पढ़ लेंगे तो कभी शैतान नहीं आएगा। ये तो 3 रिवायतें जो मुस्लिम में, तिरमिजी में, तरगीब और तरहीब में और बुखारी में है।
وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی، جس سے انسان شیطان اور جنات شیطان سے اللہ آیت الکرسی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کو جنت میں داخلے کے لیے خالی موت ماننے ہیں، اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے خالی موت رکاوٹ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پوری قرآن میں ساری قرآن کی آیتوں کی سردار آیت یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا، اس آدمی کو جنت میں اور جنت کے راحت اور آرام اور عیش و عشرت کے لیے خالی موت درمیان میں حائل ہے۔ یہ مر گیا تو سیدھا جنت کی راحتیں اور نعمتیں اس کو نصیب ہوگی، لہذا آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ مختصر اس کا ترجمہ اس صورت میں ہے کیا، اس میں اعظم ہے۔ اس میں اعظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بہت سے نام ہیں، 3000 نام اللہ کے دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، اگلے انبیاء کے 100 صحیفوں میں۔ دنیا میں جب سے اللہ نے کائنات بنائی آج تلک 3000 اللہ کے اسماء حسنی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو پڑھ کر کے تم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ہے، یہ ذاتی نام اللہ کا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکھنا جائز نہیں، اللہ ہی کی ذات کے لیے یہ نام زیبا ہے، کوئی بھی آدمی اللہ نام نہیں رکھ سکتا۔ اگلے زمانے میں کوئی متکبر گزرا جس نے اللہ اپنا نام رکھا، آسمان سے آگ آئی اور اس کا سر کاٹ کر کے اٹھا کر کے لے گئی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ علم لذاته الواجد الموجود المستجمع لجميع صفات الکمال المنزہ عن كل عیب و نقصان۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کیا ترجمہ؟ اللہ وہ ذات ہے جس کا وجود اپنا اصلی وجود ہے، ہمارا وجود ماں باپ کے تابع ہے، اللہ کا وجود کسی ماں باپ کے تابع نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو واجد الوجود ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں، اور اپنے بقا میں کسی کا محتاج نہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر میں فرمایا تمام تر صفت کمالات کی مالک ذات ہے، اس کی ذات کامل و مکمل ہے، اور تمام تر عیب اور نقصان سے اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ہمارا معبود اللہ ہے۔ عیسائیوں کا معبود عیسیٰ ہے تو وہ مریم کا محتاج ہے، اور محتاج کبھی معبود نہیں۔ عیسائیوں کا اگر معبود مریم ہے تو وہ محتاج ہے اپنے وجود میں، اور محتاج معبود نہیں۔ یہودیوں کا معبود عزیر خدا کا بیٹا مان کر کے پرستش کرتے ہیں تو اپنے وجود میں عزیر محتاج ہے اللہ کا، اور محتاج معبود نہیں۔ غیر مسلم میں ہندو سماج، ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، اس معنی کر کے کہ ہر خوبصورت پتھر اس کا دیو دیوتا ہے۔ جیسے مکہ کے مشرکوں نے 365 بت تو کعبے کے اندر رکھے تھے، اور آقا نے فتح مکہ کے دن جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک ایک چھڑی مارتے گئے اور ایک کو بیت اللہ کو ایک ایک سے پاک کرتے گئے۔ اس صورت میں ہے کیا؟ اس میں اعظم اللہ ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس میں حق کی عبودیت توحید کا زبردست مسئلہ بیان کیا ہے۔ پھر الحی القیوم، یہ اس میں اعظم میں سے ہے، اس کو پڑھ کر کے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بدر کا دن تھا، مسلمان 313 صحابہ تھے،
मुशरिकीन मुखालिफिन 1300 से ज्यादा थे। इस्लाम का पहला मारिकतुल आरा जंग और लड़ाई थी, जालिमों के साथ, काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ। इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में हजरत सहाबाए किराम मारिके में उतरे थे। रात भर पैगंबर ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन तगलिक हाज़िहिल असाबा लम तअबद अला वजहिल अर्द। ऐ अल्लाह, ये छोटी सी जमात तेरी धरती पर आज अगर हलाक हो गई, तेरी इज्जत की कसम कयामत तक तेरा नाम तेरी जमीन पर से मिट जाएगा। ये पैगंबर ने फरमाया था, लम तअबद अला वजहिल अर्द, रूए जमीन पर तेरी इबादत खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। बहुत दुआ की। अली फरमाते हैं, मेरे दिल में चाहत पैदा हुई, आज देखूं बदर की रात में, बदर के दिन में मेरा नबी क्या पढ़ता है। बस आपकी जुबान पर से जारी था, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। 1300 दंदनाते, उभरते, नाचते, गाजते और कुफ्र की एक मजबूत ताकत को खुदावंद कुद्दूस ने इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में इन 313 मुजाहिदीन इस्लाम के सदके में पैगंबर के इसमें आजम की बरकत से फतह मुबीन कयामत तक के लिए अजीम शान फतह अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। ये इसमें आजम की बरकत से जुल्म का खात्मा इस्लाम ही कर सकता है, इसलिए कि दीगर मदाहिब जुल्म के साथ बने हैं। जुल्म जोइटिंग है और इस्लाम जुल्म को खत्म करता है। इसलिए फरमाया, इत्तक़ु जुल्म फ़इन्न जुल्म ज़ुलुमात यौमिल क़ियामा। अंधेर मत करो वरना कयामत की अंधेरियों में फंस जाओगे। या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु हरामन बैनकुम फला तज़ालिमू। ए मेरे बंदो, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने मेरी जान पर जुल्म हराम किया। अल्लाह बंदों से कह रहा है, मैं अल्लाह हूं लेकिन मैं अपने ऊपर जुल्म नहीं करता हूं। अल्लाह अपने पर जुल्म नहीं करता। हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु हरामन बैनकुम। ए लोगों, तुम्हारे आपस में भी मैंने जुल्म को हराम किया। इंसान तो इंसान, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। जानवर तो जानवर, निर्जीव मखलूक पर भी जुल्म जायज नहीं। इसलिए इस्लाम में एक पैगंबर ने एक चूंटी की जंगल था, इसमें आग लगा दी और कीड़ियां जो थी, चूंटियां, वो जला दी। एक चूंटी ने काट लिया था। बुखारी शरीफ में रिवायत है दियात के बयान में, अभी सबक गुजरा है कल दो परसों मेरा। तो एक पैगंबर थे, एक जंगल में चूंटी ने काट लिया तो गुस्से में आग लगा दी, सारी चूंटियां जल गई, कीड़ियां जल गई। अल्लाह ने पैगंबर पर वही नादिल फरमाई, ए मेरे पैगंबर, ये मेरी एक उम्मत थी और मेरी इस उम्मत को एक ने तुझे तकलीफ दी थी, लेकिन पूरी उम्मत को तूने क्यों जला दिया। बुखारी शरीफ में एक अजीब रिवायत है, खिंजीर के कत्ल के बाबत भी पैगंबर ने फरमाया, ये भी एक उम्मत है और ईसा के अलावा तुम्हें हक नहीं है कि तुम खिंजीर को कत्ल करो। हाँ, लेकिन कत्लुल मुजी कबल ईसा की कबील से उसको मार सकते हो। जिस पैगंबर रहमत ने चूंटी को एक उम्मत करार दिया हो तो वह पैगंबर कैसे जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु हरामन बैनकुम फला तज़लिमू। लिहाजा आपस में जुल्म न करो। और फरमाया, मन मशा मअ ज़ालिम व हुवा यअलम अन्नहु ज़ालिम फ़क़द खरज मिनल इस्लाम। मन मशा मअ ज़ालिम व हुवा यअलम अन्नहु ज़ालिम फ़क़द खरज मिनल इस्लाम। कोई आदमी किसी जालिम को सपोर्ट करता है और उसको मालूम है कि ये